dear friends, welcome to all of you in the channel Earth Classes. My dear friends, today I, Ajay Kumar Mishra, welcome to once again to all of you for joining the class. My dear friends, today on the topic of chemistry, I am going to discuss, and the topic is suspension, solution, and colloidal. And to find out the concentration of the solubility of the solution, my dear friends, today I am going to discuss on two topics. First, now find the solubility. Find the solubility of a solution. This is the first point, and second point will be two solutions: solution, suspension, and colloidal. These two topics I am going to discuss, and I think, my dear friends, you are understanding very well, and I think whatever I am going to teach you, this is complete NCERT. I follow the NCERT book. So all the students, either they belong to state government or they belong to CBSE board, there is not any problems. Only one thing, that is language. Now in CBSE, language is English, and in state government according to their regional language, and like Hindi also. So my dear friends, I am explaining in both mediums, so I think you won't face any problem. Now my dear friends, without passing the time, I would like to start the class. Now find the solubility of a solution. How will you find out the solubility of the solution? किसी भी solution की solubility को पता हम कैसे लगाएंगे? तो my dear friends, I will discuss on the solubility. In previous classes, I have already explained what is the solubility. Amount of substances present in a solution, and the capacity to dissolve the amount of solute substances inside it, that is the solubility of a solution. और solute, जो amount solute का प्रेजेंट होता है solution में, that is वो उसका solubility होता है. Now for finding the solubility of solution, इसमें solubility of solution, solubility of a solution, solution की अगर solubility निकालना है, तो इन अर्लियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि किसी भी सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और जब दोनों मिलते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सॉलिड, मास of solute divided by mass of solution into 100. solubility परसेंटेज में हम निकालते हैं, किस में निकालते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं. तो solubility को हम निकालते हैं परसेंटेज solubility of the
solution, mass of a solid, mass of solution divided by the solution into 100। अब यहाँ पे हम मेरे प्यारे बच्चों दो चीज होती है, एक होता है जो सॉल्यूशन बना होता है, वो सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो दो तरह से बना हुआ होता है, आइदर या तो वो सॉलिड प्लस लिक्विड से बना हुआ है, सॉलिड प्लस लिक्विड, और तब वो सॉल्यूशन बना रहा है, और दूसरा है लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन होता है। ये दो होते हैं। अब यहाँ चूंकि सॉलिड जो भी होगा उसको हम किस में मेजर करते हैं, तो मास में मेजर करते हैं या वेट में करते हैं। तो इस कंडीशन में इसका जो फॉर्मूला होता है तो होता है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज जो हम लोग निकालते हैं, तो मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इक्वल टू, एक्चुअली क्यों, ये देखिए सॉलिड प्लस लिक्विड लेंगे तो यहाँ मान लीजिए आपने शुगर लिया, चीनी ले लिया, प्लस वाटर लिया, तो शुगर और वाटर, तो शुगर को हमको किस में मेजर करते हैं, तो किलोग्राम में करते हैं, और वाटर को किस में करते हैं, तो लीटर में करते हैं। नाउ इट शोज द वॉल्यूम and it shows the kilogram. Now in this way we can measure in weight, so mass percentage of solution, या इसी को आप बोल सकते हैं weight percentage, weight percentage also। तो weight percentage और mass percentage of a solution होता है mass of solute, mass of solute divided by mass of solution, mass of solution इंटू 100। इस फॉर्मूले पे हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, सेकंड जो है आपका, वो सेकंड जो है, तो सेकंड में अगर सॉल्यूशन लिक्विड लिक्विड है, मान लिया कि क्या है आपका अल्कोहल प्लस वाटर, सॉल्यूशन अगर अल्कोहल प्लस वाटर है, AlCOHOL, अल्कोहल प्लस वाटर, तो ये अल्कोहल भी लिक्विड में है और वाटर भी लिक्विड में है। नाउ इसका हम जो सॉल्युबिलिटी निकालेंगे वो वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नाउ इस फॉर्मूले पर हम लोग किसी का सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, कॉमन एग्जांपल है। वो एग्जांपल ये है कि अगर किसी सॉल्यूशन में, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से अंडरस्टैंड कीजिए। अगर इफ किसी भी सॉल्यूशन में 10 ग्राम कॉमन साल्ट मिला हुआ है, तो उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या है। 10 ग्राम NaCl present in a given solution, प्रेजेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट कौन होगा मेरा, NaCl, कॉमन साल्ट। ये NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन साल्ट। तो ये कॉमन साल्ट जो है आपका, दैट इज सॉल्यूट, ये कितना है आपका 10 ग्राम।
तो रेस्ट जो है वो क्या है आपका वाटर है, तो वाटर है, तो वाटर क्या है आपका सॉल्वेंट हो गया। तो 90 ग्राम हो गया आपका सॉल्वेंट, और ये दोनों मिल गया आपका, तो कॉमन साल्ट और वाटर का सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन हो गया। सॉल्ट प्लस सॉल्ट वाटर, दिस इज द सॉल्यूशन। ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन हो गया। और नाउ ये टोटल कितना हो गया आपका 100 ग्राम। इट मींस द solubility of salt which is present in a solution that is 10%। कितना होगा आपका 10%। तो फाइंड आउट करेंगे आप, क्योंकि ये सॉल्ट क्या है आपका सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे मास परसेंटेज से निकालेंगे। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इट मींस 10 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना है आपका 100 है, ये सॉल्वेंट है 90 ग्राम आपका, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन बोलता है तो ये 100 हो गया। नाउ इनटू 100, ये आपका क्या हो गया क्रॉस कर गया, बचा कितना आपका 10%। नाउ द solubility of a solution, solubility of a solution is 10%. Now in this way we can find out the solubility of a solution। ठीक इसी तरह से अल्कोहल और वाटर में होगा, तो अल्कोहल अगर 10 ग्राम है तो वाटर कितना हो जाएगा मेरा 90 ग्राम, टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम। नाउ फाइंड आउट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। नाउ 10 दैट इज अल्कोहल डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन, इट मींस वाटर और अल्कोहल दोनों मिलेगा तब सॉल्यूशन होगा। तो 10/100 इंटू 10/100 इंटू 100, इसका मतलब इसका वॉल्यूम परसेंटेज कितना हो गया 10%। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द solubility of a solution। Now my dear students, I would like to give you some problems so that you can solve। Now ready, find out your pen and paper so that you can understand the questions and solve the problem, and we confirm for finding the solubility or concentration of a solution। Now first क्वेश्चन है मेरे बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 6 ग्राम कॉमन साल्ट इज सोल्यूबल इन 19.025 यानी 20 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख लीजिए, 6 ग्राम of common salt presenting 20 gram of 20 gram of water at, या प्रेजेंट लिखे या सोल्यूबल लिखे, आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं। 6 ग्राम कॉमन साल्ट प्रेजेंट और सोल्यूबल इन 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, एट 293 केल्विन फाइंड द solubility, find the solubility। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कलेक्ट द डेटा। आपको सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना है, मतलब 6 ग्राम कॉमन सॉल्ट, ये सॉल्ट क्या आपका कॉमन सॉल्ट है 6 ग्राम। नाउ ये सॉल्ट है और दूसरा क्या है 20 ग्राम, ये क्या है वाटर है आपका, वाटर दैट इज 20 ग्राम। 20 ग्राम वाटर हो गया, 6 ग्राम आपका सॉल्ट हो गया,
I know very well, according to the definition, less amount of a substance is present in a solution is called solute, and more amount of a substance which is present in a solution, that is called solvent. Now generally, obviously, this is the solute. ये क्या हो गया आपका solute हो गया और ये आपका solvent हो गया. Now दोनों को मिला दे तो क्या हो गया आपका 26 ग्राम आपका हो जाएगा solution. Now you have to find out the solubility. तो solubility निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सिंपल सा 293 Kelvin. It has been given here. Now क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग मैं कर रहा हूँ बेटे. 20/19 ग्राम कर दो मैं. ये 19 ग्राम कर दिए सो दैट की द प्रॉब्लम कैन बी इजियर हियर. 25 ग्राम हो गया आपका ये. अब नाउ सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए तो ये क्या है आपका, एक सॉल्ट है और दूसरा सॉल्यूशन है वाटर लिक्विड. तो यहाँ पर हम वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज निकालेंगे. मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन. तो ये क्या होगा, mass of solid by mass of solution into 100. Now mass of solute कितना है आपका 6 ग्राम है. तो we will write here 6 ग्राम divided by mass of the solution. solution कितना है आपका 25 ग्राम. क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है और हमको लिखना है मास ऑफ सॉल्यूशन. सो बी केयरफुल ऑल द टाइम. डोंट राइट द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड वी हैव टू राइट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. सो वी विल राइट हियर 25 into 100. ये कर जाएगा आपका 4 से और टोटल कितना होगा 6 into 4 इक्वल टू 24. ये कितना हो गया आपका 24 ग्राम और 24%. मतलब कितना सोलबिलिटी है इसका, इसकी सोलबिलिटी कितना है 24% है. मतलब अगर 19 ग्राम वाटर है और 6 ग्राम कॉमन साल्ट है तो उसकी सोलबिलिटी क्या है, तो उसकी सोलबिलिटी 24% है. इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, राइट डाउन इन योर अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखे फिर आई विल डिस्कस. नाउ 12 ग्राम ऑफ पोटासियम सल्फेट, 12 ग्राम ऑफ K2SO4, that is potassium sulfate. 12 gram of potassium sulfate are soluble in 75 gram of water at 60 degree C. 75 gram of water at 75 gram of water at 60 degree C. Find the solubility. Find the solubility. Same thing. Again 12 ग्राम K2SO4 आप यहाँ पर डालिए. पोटासियम सल्फेट K2SO4, इसको मैं बोलता हूं पोटासियम सल्फेट. क्या है आपका पोटासियम सल्फेट. नाउ दिस इज द स्मॉल अमाउंट. ये कितना आपका 12 ग्राम है और 75 ग्राम ऑफ वाटर. वाटर कितना हो गया आपका 10 ग्राम ले लेंगे. यहाँ भी हम 10 ले लेते हैं.
नाउ वाटर इज 75 ग्राम. नाउ सॉल्यूशन, ये हो गया आपका सॉल्यूट और ये हो गया आपका सॉल्वेंट. दोनों जब मिला तो क्या बन गया आपका सॉल्यूशन. नाउ 85 ग्राम हो गया. अब आपको निकालना है सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी, तो मास ऑफ सॉलिड, मास परसेंटेज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100. ये हो गया आपका 17 जा, ये हो गया 25 जा. कितना हो गया आपका 200 डिवाइडेड बाई 17, यानी 10 पॉइंट समथिंग %. ये सोलबिलिटी, ये प्रोडक्ट सोलबिलिटी मेरा निकला. इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द solubility or concentration of a solution. My dear students, next point today I have to discuss about the suspension, solution and collider. Now solution, suspension and third is collider. What are these, my dear students? Actually earlier I have already discussed. Now mixture, there are two types of mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture, that is true solution, and heterogeneous mixture, they are in different types. So suspension and colloidal, these are the heterogeneous. And solution, that is, it is called true solution. Now this is the homogeneous. इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज होमोजेनियस और ये क्या होगा मेरा हेट्रोजीनियस. तो ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल. माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस सेक्शन अर्लियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द पार्टिकल्स साइज. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द पार्टिकल्स साइज और Tyndall effect and Brownian motion. Brownian motion. So what is the Tyndall effect? The scattering of beam of light in a solution is known as Tyndall effect. मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली टिंडल नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में जब टॉर्च की लाइट को, बीम को पास कराया तो देखा कि वो अंदर तक नहीं गया, वो स्कैटर्ड कर गया. और वो स्कैटर्ड कर गया तो बताया कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है. एंड नाउ सच इफेक्ट वाज गिवन बाय द टिंडल, सो इट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट. एंड ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मोशन. ये मान ली कि पार्टिकल से ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर चला जा रहा है, इधर. मतलब जिगजैग मोशन को हम क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन. तो ये जिगजैग मोशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं. नाउ यही सॉल्यूशन which give uniform composition, that is called homogeneous mixture, and it is true solution. Why? Because it shows some properties. वो properties क्या होता है true solution का? तो true solution की properties होती है कि particles size, इसका particles size होगा true solution का. देखिए true solution हो गया, सस्पेंशन हो गया आपका,
और तीसरा क्या होगा आपका कोलाइडल। ये आपका है ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्टिकल साइज का। तो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज होता है 100 nm से लेस देन, ये क्या होता है आपका लेस देन 100 nm। 100 nm से अगर लेस होगा जिस सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज, वो ट्रू सॉल्यूशन होगा। वो नेकेड आई से भी नहीं दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देगा, फिल्टर पेपर से भी नहीं, टिंडल इफेक्ट को भी नहीं शो करेगा, ब्राउनिन इफेक्ट को भी नहीं शो करेगा। तो दीज आर द ट्रू सॉल्यूशन, मतलब बिल्कुल वो क्लियर होगा। सस्पेंशन किसको बोलते हैं? व्हेन वी लेफ्ट द सॉल्यूशन एंड a few minute later the particles which is present in the solution, it is suspended on the bottom of the pot, and such a solution is known as suspension। वो सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल्स जब अनडिस्टर्ब हम छोड़ दें उसे, तो कुछ देर के बाद उसके पार्टिकल नीचे उसके बॉटम पे बैठ जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। लाइक फ्लड वाटर, बारिश आती है, पानी बहता है, नदी की पानी पीला होता है, येलो दिखाई देता है। इट इज नॉट येलो बिकॉज देयर इज नो कलर ऑफ वाटर, इट इज ए कलरलेस। लेकिन वो येलो दिखाई देता है, इसका रीजन होता है कि सॉइल उसके अंदर मिला हुआ है। एंड नाउ जब उस पानी को एक ग्लास में लेकर के हम 2-3 दिन ऐसे ही छोड़ दें, तो उसके अंदर जो सॉइल पार्टिकल्स इट विल बी सस्पेंडेड, एंड नाउ द कलरलेस वाटर, देयर इज नो कलर ऑफ वाटर, इट विल अपीयर्स, एंड नाउ दिस इज नोन एज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में क्या होता है कि पार्टिकल का साइज 100 nm से मोर होगा, मोर देन 100 nm, नैनोमीटर। nm का मतलब होता है नैनोमीटर। पार्टिकल का साइज 100 nm से कम, 1 nm या 100 nm से ये होता है, म्यू भी बोलते हैं हम लोग। नाउ कोलाइडल सॉल्यूशन, ये भी मोर देन 100 होता है। दूसरी बात करें अगर हम लोग ट्रू सॉल्यूशन का, इट कैन पास इन फिल्टर, फिल्टर में पास कर जाएगा। सस्पेंशन भी, सस्पेंशन जो होता है उसके पार्टिकल साइज मोर देन 100 nm होगा। नाउ इट कैन शो द टिंडल इफेक्ट। नाउ सस्पेंशन, कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन, तो 1 nm होता है, 100 nm नहीं, 100 सेंटीमीटर, 1 nm नैनोमीटर। तो पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन का लेस देन 1 nm होता है, सस्पेंशन का मोर देन 1 nm। 1 nm से जिस भी पार्टिकल का साइज 1 nm से बड़ा होगा वो क्या होगा? हेट्रोजीनियस दिखाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन मोर देन 1 nm होता है। नाउ ट्रू सॉल्यूशन को हम होमोजीनियस बोलते हैं, लेकिन सस्पेंशन और कोलाइडल को क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। नाउ इट कैन फिल्टर, ये चूंकि फिल्टर पेपर में पास कर जाएगा, लेकिन इसके फिल्टर, सस्पेंशन का फिल्टर पेपर में पास नहीं कर सकता है। बिगर सॉलिड पार्टिकल्स अगर रहेगा तो वो फिल्टर हो जाएगा, वो इट कैन फिल्टर, इट कैन नॉट फिल्टर, फिल्टर नहीं कह सकता है, मतलब ये पास कर जाएगा। इट कैन फिल्टर मतलब इसकी साइज पार्टिकल बड़ा होगा तो फिल्टर कर सकते हैं, एंड इट कांट फिल्टर, इसको भी फिल्टर नहीं कर सकते हैं, वो पास कर जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल्स ऑफ साइज। इट डज नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को नहीं शो करेगा। कुएं में या बाल्टी में रखे हुए पानी में, एक बड़े बैकेट में
बकेट में आप 1 कॉइन्स को रख दें और ऊपर से देखेंगे वो पारदर्शी पूरी तरह दिखाई दे, लेकिन दूध एक बकेट में रख दे और नीचे कॉइन्स को रख दे तो दिखाई नहीं देगा, बिकॉज दिस इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। वो हेट्रोजीनियस है, उसके पार्टिकल्स 1 nm से बड़ा है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, लाइट के बीम को स्कैटर्ड करता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। नाउ इट शोज द टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को दिखाएगा, टिंडल इफेक्ट, इट ऑल्सो शोज द टिंडल इफेक्ट, ये भी टिंडल इफेक्ट को आपको दिखाएगा। नाउ ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन ये जो होता है वो सेमी ट्रांसपेरेंट होगा, वो भी क्या होगा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन भी सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। नाउ ये ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल की साइज बिल्कुल छोटे होते हैं, वो सस्पेंड नहीं करेंगे, वो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर या लिक्विड के अंदर वो स्कैटर्ड, वो उसके अंदर ही रहेंगे, सस्पेंड नहीं करेगा। सो वी कैन से दैट ट्रू सॉल्यूशन कांट सस्पेंडेड, but suspension can be, its particle can be suspended when we left for a while undisturbed, and now solid can be suspended। अगर कोलाइडल सॉल्यूशन का सॉलिड पार्टिकल्स है, क्योंकि बिगर साइज होता है इसलिए वो सस्पेंड कर जाएगा। दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। माय डियर स्टूडेंट्स, कोलाइडल हैज सम टाइप्स ऑल्सो। कोलाइडल का कुछ टाइप्स होता है, जैसे जेल, सोल, एरोसोल, ठीक है, इमल्सन। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेपरेशन ऑफ मिक्सचर को देखेंगे। एंड नाउ आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। आफ्टर ऑल, इफ आई हैव अ प्रॉब्लम, माय डियर स्टूडेंट्स, सेंड मी मैसेज so that I can sort out your problems. And once again I would like to request all of you, please my dear friends, spread your channel among all the students so that they can get more and more benefit in lockdown session. Thank you for today's class.